Assalamu alaikum everyone. Let us start our session today. Welcome you all to this new session. Please type in your names in the chat box for attendance purposes. आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा प्रेजेंटेशन से पहले जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज. So we were talking about recommender systems and the algorithms that are used in recommender systems. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, Prakash? We'll be talking about recommender systems today, but it's also important that those of you who have not done your presentations, please set up a time. And I haven't checked your LMS today, so if you already have done that, that's great. Okay, so let me just quickly check that out. All right, that's over here. अच्छा, और इसके साथ साथ जो है मैं आपसे 2-3 रिक्वेस्ट जो है वो रिपीट करना चाहूँगा because they are important. Number 1 रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि जिन लोगों ने presentations कर ली हैं, they should upload their slides on LMS. ठीक है, तो उसमें मुझे last time तक जो है there was just one, and now there's one more today. So yeah. Sir, do all the group members have to upload the presentation? No, not all the members, just one person per group. They have to. So if you have made your presentation and I see that some of you have already uploaded them, that's great. But if you have not done that, please do that. Second thing that I want to remind you is about your running assignment, and you have to create your page on your wiki, and most of you have done that, and that's great, but still there are a couple of people left, so I'm just reminding them to create their own wiki page. Ji Ibrahim, aap kuch kehna cha rahe hain? Yes, sir. Sir, I was asking the presentations, where exactly do we have to upload them on LMS? Dropbox में, अपने Dropbox में कर लें या resource folder में भी कर सकते हैं आप. I read somewhere that some of you have uploaded them on forums. That's appropriate too, लेकिन ज़्यादा जो है proper चीज़ है, everyone is doing it on their Dropboxes, so it's best to do it on Dropbox. Otherwise, just you have to inform me that you have not uploaded on your Dropbox, you have uploaded it somewhere else. But since everyone is doing there, so it's good that you do it there as well. अच्छा, इसके अलावा जो है जी, is there a question? Sir, and for the running assignment, yeah, for the running assignment, I just started the wiki page 2 days in the last class, and I did fill out the information for the last class, but not for the previous lectures. So shall I fill out for the previous lectures too? Don't worry too much about that, okay? Because it's not about the quantity, okay? It's also about your, so, I mean, it's good that you have started. You might miss on a little bit of marks that you have done initially, but I think that's better than spending too much time now trying to figure out what happened in which class, asking your friends. So that's too much hassle for, I think, the marks you'll get won't be worth that kind of effort. So I would just say start from now. So that would be great. दूसरी बात जो है मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो presentations हैं उनका जो अपना weightage है उसके साथ साथ आप जो feedback provide करते हैं to your classmates and your friends and fellows, that also has a weightage. तो उसको जो है आप optional consider नहीं करें. That is just as
as required as doing your presentations. So presentation के दो part हैं, you present and you provide feedback, and this ties back with the theme that we have been talking about throughout कि ये जो है collaborative learning हो रही है, इसमें हम जो एक नया paradigm से साथ experiment कर रहे हैं, और वो ये कि हम एक दूसरे को किस तरह से help करते हैं knowledge acquisition में. So we have to help each other in developing our concepts, and we can help each other by providing feedback to them कि आपकी ये चीज जो थी अच्छी थी, ये चीज है, or you can even ask questions about the presentation कि अच्छा ये चीज है. You can do that on forum, but you can also there's also a form that is available to you that is more structured कि उसमें अपने presentation में आपको जो है क्या चीज जो है ज़्यादा अच्छी लगी, क्या चीज कम अच्छी लगी, you have to do that. लेकिन just to remind and just to repeat over and over again, I've repeated it, but I'm doing it again, that you have to all join hands in learning in this class. ठीक है, तो ये lecture based नहीं है, इसमें everyone takes a turn. ठीक है, I'll take turns, you will take turns. तो आज I'll talk about recommender systems as my turn, but you pick up your own topics and just share that understanding with the class. ठीक है, और आप उन्हें बताएं कि आपने क्या learn किया है, ताकि दूसरे जो आपकी class वाले हैं वो भी आपसे learn कर सकें. ठीक है, तो the reason we are doing this is कि जो social computing है उसका paradigm ही social है. It's against hierarchical paradigm जिसमें one is to many paradigm जो होता है. We want to do consciously away from that paradigm क्योंकि social computing ने has taken us away from that paradigm. ठीक है, जिसकी हमने बहुत सारी examples की थी पहले. अब जो है social media के through जो है everybody is empowered. आपने Wikipedia की example देखी थी first class में, उसके बाद Twitter की देखी थी. Twitter allows everyone to share news. It's not just the newspapers now, जिसमें two-way communication नहीं होती थी. Twitter में आपके पास two-way communication है, और जितना भी social media है और social computing के दूसरे सोशल मीडिया के अलावा जो दूसरी सोशल एप्स आपने देखी अभी तक, जिसमें एक हमने एग्जांपल की थी ज़ूनिवर्स की. ठीक है, ज़ूनिवर्स में जो है वो आप सब मिलके एवरीबॉडी यानी कि सोशल लेवल पे वी कैन डू साइंस, और उसकी और एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी. बर्ड्स ऐप की थी, और फिर एक दूसरी एग्जांपल आपको मैंने बी माई आइज की एक एप्लीकेशन की एग्जांपल दी थी. तो उसमें पीपल, it's not just one organization, it's people who help other people. ठीक है, in learning, in running a campaign, in doing so. Last class में भी आपने देखा था कि there were some very good examples of social apps कि किस तरह से social apps जो हैं वो help कर रही हैं in different sectors, जिसमें education भी है, जिसमें medicine भी है, और जिसमें engineering भी है. बहुत सारी दूसरी applications हैं इस तरह की, वो इसमें हमने देखी थी. So this is my request to all of you, those who have not started yet, do these things. Provide feedback to your class fellows on their presentations. Go and discuss topics on the forums. ठीक है, दूसरे लोगों की पोस्ट पढ़ें उन्होंने क्या लिखा है और आपने उससे कमेंट करें. Third, go to Commons. वहाँ पे आप जो है Facebook के टाइप का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. आप जो अच्छे आर्टिकल्स हैं उनके लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे. If you come across any interesting thing that is related to social computing, you can put them out there. ठीक है, तो these all help us in collaborative learning. तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से. मैंने रिपीट किए हैं, लास्ट टाइम भी किया था. So it's good that there's a good attendance today, and so that I thought it would repeat. आज के जो है मैं straight dive करूँगा into technicalities of a particular algorithm that is used in recommender systems, that is collaborative filtering. और उसके बाद फिर जो है मैं थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स
मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन जो है एक एल्गोरिदम, उसके बारे में बताऊंगा। दीज आर टू वेरी पावरफुल एल्गोरिदम्स जो कि सोशल कंप्यूटिंग में काफ़ी वाइडली इस्तेमाल होते हैं। और आपको मालूम है कि रिकमेंडर सिस्टम्स जो हैं, they now play an important role in many social apps, which means they play a role in e-commerce type of sites। ठीक है, जब आप जाते हैं कोई एक आइटम खरीदते हैं, कोई किताब खरीदते हैं, तो you get many other recommendations। तो वो रिकमेंडेशन की क्या बेसिस होती है, what's the logic behind that? ठीक है, तो हमने जब ये शुरू किया था आपकी प्रेजेंटेशन से पहले, उसमें आपने मुझे 3-4 अप्रोचेस बताई थी जिसकी मदद से हम ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो लेट मी जस्ट रिकॉल दोस अप्रोचेस दैट यू टोल्ड मी। उसमें एक ये था कि अगर आप फॉर एग्जांपल बुक्स खरीद रहे हैं, बुक्स की हम उस पे काम करते हैं, बुक्स की परचेज पे, तो आपने एक बुक खरीदी, तो एक रिकमेंडेशन का एक अप्रोच जो आपने मुझे बताई थी वो ये था कि उसकी सिमिलर बुक्स जो हैं वो रिकमेंड की जाए। फॉर एग्जांपल इफ अगर मैंने कोई एक नॉन फिक्शन किताब पसंद की है, लेट्स से इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, साइंस के किसी डिसिप्लिन में, लेट्स से एस्ट्रोनॉमी में, सो लेट्स रिकमेंड मोर बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, दैट आर ऑफ द सेम लेवल। अगर मैंने एक एडवांस एस्ट्रोनॉमी की किताब मैंने सेलेक्ट किया, तो मे बी एडवांस एस्ट्रोनॉमी की बुक्स रिकमेंड की जाए। अगर मैंने मीडियम लेवल की किया या बिगिनिंग लेवल की किया, तो मुझे बिगिनिंग लेवल की जो है वो रिकमेंड की जाए। सो दिस इज वन अप्रोच दैट यू टोल्ड मी, एंड इट्स अ वेरी वैलिड अप्रोच। It's one of the 3 types that are there on your slides, that are also on your LMS recommender systems के। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, जिसमें आप जो सिमिलैरिटी जो है वो ढूंढते हैं बिटवीन आइटम्स के दरमियान सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। दूसरी अप्रोच जो आपने मुझे बताई थी वो ये थी कि यू लुक एट माय पास्ट बिहेवियर एंड सी के व्हाट अदर टाइप्स ऑफ बुक्स आई एम इंटरेस्टेड इन द पास्ट। ठीक है, तो वो बुक की सिमिलैरिटी वहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पे मेरे पास्ट बिहेवियर जो है उसको गाइड बनाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि पास्ट में मैंने किस टाइप की चीज़ें लाइक की थी, तो सिमिलर चीज़ें जो है मुझे रिकमेंड की। तो दिस इज द अनदर अप्रोच which is based on my personal likings and my personal behavior in the past। तीसरी अप्रोच जो है, जो कि आपने मुझे बताई थी, उसी को आज मैं उसका जो एल्गोरिथम है उसको मैं डिस्कस करूंगा। वो ये है कि फर्स्ट find out other people who are similar to me, ठीक है, and then see के what type of items they like, और जो मेरे से सिमिलर लोग हैं उनको जो जिन चीज़ों को उन्होंने जिनको पसंद किया है वही चीज़ें मुझे रिकमेंड की जाएं। So the basic idea over here is that similar people have similar tastes. So if we can find people who have who are similar to me in some manner, then they will like similar items. तो ये फर्स्ट अप्रोच और इस अप्रोच में अगर आप कंट्रास्ट करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट अप्रोच में एक बुक की सिमिलैरिटी दूसरी बुक से हम लोग कर रहे थे, सो आइटम और आइटम की सिमिलैरिटी वहाँ पे हम ट्रेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम यूजर और यूजर की सिमिलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हु आर द अदर यूजर्स हु आर सिमिलर टू द यूजर इन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाली जो लास्ट अप्रोच है ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहलाती है। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज़बानी, एंड देन आई विल शो यू द स्प्रेडशीट जिसमें जिसकी एक्चुअल कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो first thing is to find people who are similar to me, and the second step is to find the ratings of a particular item for that group, and then in the third step you make a prediction कि मुझे किस तरह से वो पसंद आएंगी। So let me, with this introduction, share my screen. So can you all see this spreadsheet over here? Yes, sir. Okay, excellent. So let me explain इस spreadsheet में क्या हो रहा है। ठीक है, इस spreadsheet में collaborative filtering का algorithm बताया जा रहा है। इसमें ये जो U1 से लेके U4 तक है ये users हैं, there are 4 users।
ठीक है, और there are 4 books that are on sale, ठीक है, और ये उनकी रियल रेटिंग्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 का मतलब ये है कि यूजर 1 ने बुक 1 को 9 रेटिंग दी है, लेट्स से दिस इज आउट ऑफ 10, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूजर 1 को बुक 1 बहुत पसंद आई है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट बुक 3 फॉर द सेम यूजर, यूजर 1, तो यूजर 1 को वो बुक 3 पसंद नहीं आई, उसने उसको 1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है, ठीक है। और बुक 2 जो है उसको थोड़ी सी पसंद आई है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी रेटिंग 3 आई है, और बुक 4 जो है उसकी भी अच्छी रेटिंग है, इट्स 8। सो देयर आर 2 बुक्स दैट आर मोर लाइक देन द अदर 2 बुक्स, ये हम इसमें से इन्फर कर सकते हैं। और इसी तरह से ये यूजर 2 का जो है चारों रेटिंग्स हैं आपके पास, और यूजर 3 और यूजर 4 की। तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारे सारे यूजर्स की, सारे आइटम्स की रेटिंग्स मौजूद है, ठीक है। और इफ यू गो डाउन दिस स्प्रेडशीट ओवर हियर, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यूजर्स और बुक्स की रेटिंग्स दी हुई हैं, लेकिन ये दीज आर एक्चुअली प्रिडिक्टेड रेटिंग्स हैं ये, ठीक है। तो प्रिडिक्टेड रेटिंग जो है वो हमने रियल रेटिंग नहीं है, ये कंप्यूटर ने जनरेट की है, ठीक है। एंड यू कैन सी कि इसने बुक 1 और बुक 2 की काफी अच्छी प्रिडिक्शन की है, यानी कि यूजर 1 को उसने कहा कि वो 8 प्रिडिक्ट करेगा, जबकि एक्चुअल में उसने 9 प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो इट्स अ प्रीटी गुड प्रिडिक्शन। B2 को तो बहुत ही इसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया कि एक्चुअल यूजर ने भी 3 रेटिंग की थी, और कंप्यूटर भी कह रहा है कि 3 रेटिंग करेगा, ठीक है। सो we'll see how these numbers are generated in this spreadsheet, ठीक है। That's not a difficult algorithm. और इसी तरह से आप देखें कि बाकी यूजर्स की भी जो रेटिंग्स हैं काफी अच्छी प्रिडिक्शन है। यूजर 2 की भी बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन आई है, यूजर 3 की भी बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन आई है, और यूजर 4 की भी बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन आई है। अच्छा, ये जो प्रिडिक्शंस हैं, इफ यू कैन सी the formula here, ठीक है, it's coming from this formula. अगर आप formula बार में देखेंगे, it looks pretty complex right now, and I'm not sure कि आप लोगों को कितना clearly नजर आ रहा है वो, but let me, if I can somehow copy this formula and put it on, let's say, Notepad. To show you the formula. Okay, so let me stop my screen sharing. And restart my screen share so that you can look at the formula here. तो अब ये स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखें, ये देखने में काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन in next 5 or 10 minutes I'll explain this formula to you कि ये किस तरह से ये prediction generate हुई है. So you can see one thing is very clear over here, that it is just manipulation of numbers with simple multiplication, division and addition, ठीक है, उससे ये हमने prediction की है. So this is quite amazing to me कि आप जो है ये जो बहुत ही कम डेटा है, ठीक है, 4x4 का हमारे पास मैट्रिक्स था, उस डेटा की मदद से हमने जो है ये predictions की हैं, which you can see are quite accurate here for book 1. और book 2 के लिए भी अगर आप real से compare करें, तो real आपके पास है 3, 3, 2 और 2, और predicted आपके पास है 3, 3, 3 और 2. So there is just one small error over here, ठीक है। इसकी predicted value 3 है, जबकि actual value इसकी 2 है। तो ये किस तरह से हमने ये अचीव किया है? तो let's look at this individual parts of it. तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हर यूजर की हम एवरेज मालूम कर लेते हैं. What is the average score for user?
ठीक है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट स्टेप, आप सब लोगों को लिए इजी है ना ये वाला स्टेप? Yes, sir. All right, so thank you. So all you are doing over here is getting the average of C2 से लेके F2 तक. 2 ये जो है रो जो है ये यूजर 1 की रो है, और C से लेके F तक जो है वो हम एवरेज ले रहे हैं जो कि बुक्स की रेटिंग्स है. और इसी तरह से यूजर 2 की एवरेज 5.5 है, यूजर 3 की भी 5.5 है, और यूजर 4 की भी एवरेज 4.5 है. ठीक है. At the same time, we are also obtaining averages for the books. जैसे बुक 1 की एवरेज रेटिंग हमारे पास आई है 8, बुक 2 की एवरेज रेटिंग आई है हमारे पास 2.5, बुक 3 की आई है 2, और बुक 4 की हमारे पास 8 एवरेज आई है. ठीक है, तो ये भी स्टेप सिंपल है, ये भी हमें समझ आ गया. ठीक है, एवरेजेस हमने लेनी. तो ये उस फॉर्मूले में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं ये भी हम देखेंगे. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हमने ले लिया एवरेज का. दूसरा स्टेप जो है वो ये हम जो रेटिंग्स हैं उनको हम नॉर्मलाइज करते हैं. ठीक है, नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ स्कूल विद मल्टीपल टीचर्स. ठीक है, और मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे. अब होता ये है कि as you might be aware that some teachers let's say are very lenient, और वो हर स्टूडेंट को बहुत हाई मार्क्स देते हैं. ठीक है, and there are some teachers who are very strict, वो हर स्टूडेंट को कम मार्क्स देते हैं. ठीक है, तो उनकी क्लास में जो हाईएस्ट है लेट्स से वो 5 आता है आउट ऑफ 10 या 6 आता है आउट ऑफ 10, वेरी स्ट्रिक्ट. और दूसरे जो टीचर है उसका जो लोएस्ट है वो 5 या 6 आता है, और मैक्सिमम जो है 10 आता है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ रेटिंग्स. और यही चीज जो है यूजर्स में भी हो सकती है. कुछ हो सकता है लीनियंट यूजर्स हो, कुछ हो सकता है कि स्ट्रिक्ट यूजर्स हो, उन्हें कोई भी किताब पसंद नहीं आती, वो सबको लो रेटिंग देते हैं. और कुछ यूजर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सारी बुक्स को हाई रेटिंग देते हो. लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि ऑर्डरिंग जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है रादर दी एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक लीनियंट भी टीचर है तो वो भी जो है जो उनमें से सबसे बेस्ट स्टूडेंट है उसको किसी तरह से वो ज्यादा ग्रेड देने की कोशिश करेगा, और जो सबसे वीक स्टूडेंट है उसको सबसे लो ग्रेड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज जस्ट टू differentiate between the performance. Although everyone getting good marks, but there has to be some kind of differentiation. इसी तरह से जो users हैं वो भी अपना जो difference होगा किताबों के दरमियान उसको तो वो कैप्चर करेंगे, चाहे वो लीनियंटली कैप्चर करें या वो स्ट्रिक्टली कैप्चर करें, बट दे विल कैप्चर. तो इस चीज को जो है, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए और यूजर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, उनकी रेटिंग्स को करीब लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि उनकी रेटिंग्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं, और सारी रेटिंग्स को जो है 0 to 1 रेंज में लेके आ जाते हैं रादर देन 0 to 10 रेंज में. ठीक है, 0 to 1 रेंज में ले आते हैं सबको. और दूसरा ये कि उनके जो है फिर सबकी रेंज कॉमन हो जाती है. ठीक है, वरना जो है एक जो स्ट्रिक्ट टीचर है उसकी रेंज हो सकता है 0 to 5 हो, और जो एक लीनियंट टीचर है उसकी रेंज 5 to 10 हो. तो ये बिल्कुल डिफरेंट रेंजेस हो जाती हैं. तो इसलिए जो है ये उनको कंपेयर करना मुश्किल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू डू ओवर हियर इन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज फाइंड सिमिलर यूजर्स. ठीक है, तो सिमिलर यूजर्स को मालूम करने के लिए एक स्टेप हमें करना पड़ता है, वो है नॉर्मलाइजेशन के. उनकी रेटिंग्स जो हैं पहले उनको नॉर्मलाइज कर दें ताकि वो सेम रेंज के अंदर आ जाए. तो नॉर्मलाइज करने का क्या तरीका होता है? नॉर्मलाइज करने का तरीका ये होता है कि आप जो है हर रेटिंग को जो है उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि आप लोग वेक्टर्स के उससे वाकिफ हैं कॉन्सेप्ट से? ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर? जी, एनीवन? Yes or no? Yes, sir. We're familiar with it. आप हैं, excellent. तो देखिए वेक्टर्स जो होते हैं, अगर ये जो अभी डेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यूजर और बुक्स का,
इसमें is it possible for us to represent each user as a vector? जी, आपका क्या ख्याल है? हम हर यूजर को एक वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। अच्छा, तो बताएं कैसे करेंगे अगर कर सकते हैं तो। सर कोई एक यूजर आईडी दे दें, बेस्ड ऑन दैट वी कैन रिप्रेजेंट यूजर एज ए वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर के नॉर्मली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें क्या चीज होती है वेक्टर? Sir, it has a direction and a magnitude, I guess. राइट, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि डायरेक्शन है तो या मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है और हमें जो है डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है कि कितनी डायमेंशंस में हम उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक 2 डायमेंशनल स्पेस है और हमारे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं उसके अंदर, तो वो उनकी डायरेक्शन सिर्फ उस प्लेन के अंदर ही हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जमीन की सरफेस को 2 डायमेंशनल कंसिडर कर लें, तो जमीन में हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं, एक ईस्ट वेस्ट होती है और एक नॉर्थ साउथ होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। और जमीन पे जब भी कोई हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी पॉइंटिंग इन वन ऑफ दीज डायरेक्शंस, ठीक है, या नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में या इनकी कोई कॉम्बिनेशन से करेगा। लेकिन दैट वेक्टर विल नॉट बी एबल टू पॉइंट अप एंड डाउन, विच इज द थर्ड डायमेंशन। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा वेक्टर लेना चाहते हैं जो कि अप एंड डाउन भी साथ में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करे, तो आपको एक 3 डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सरफेस के ऊपर वो काम नहीं चलेगा, आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको जो है वेक्टर वो बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है चीज। मैथमेटिकली वी कैन गो बियॉन्ड 3 डायमेंशंस, ठीक, वी कैन गो टू 4 डायमेंशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूजर्स को हम 4 डायमेंशनल वेक्टर के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको ग्राफिकली तो प्रेजेंट करना मुश्किल होगा हमें, लेकिन हम कंसेप्चुअली हम देख सकते हैं कि एक ऐसी स्पेस जिसमें 4 डायमेंशंस हैं, हर बुक की अपनी एक डायमेंशन है। ठीक है, तो उस बुक को कितना पसंद किया है तो वो वेक्टर उतना ज्यादा उस डायमेंशन में आगे जाएगा। जैसे कि B1 डायमेंशन जो है उसमें वो 9 यूनिट तक आगे जाएगा, लेकिन जो B2 डायमेंशन है उसमें वो सिर्फ 3 यूनिट आगे जाएगा, और B3 डायमेंशन जो है उसमें सिर्फ 1 यूनिट आगे जाएगा, लेकिन B4 में वो 8 यूनिट आगे तक चला जाएगा। तो जिस तरह से वेक्टर आप विजुअल 3 डायमेंशन में तो आप विजुलाइज कर सकते हैं बिकॉज वी आर 3 डायमेंशनल क्रीचर्स, लेकिन 4 डायमेंशंस में या हायर डायमेंशंस में अगर किताबें 4 से ज्यादा हो, मिसाल के तौर पर 10 किताबें हो, तो वील नीड अ 10 डायमेंशनल स्पेस। तो 10 डायमेंशनल स्पेस जो है विजुलाइज करना हमारे लिए तो नामुमकिन है, मे बी वैसे भी नामुमकिन हो, लेकिन मैथमेटिकली जो है दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैथमेटिकली सिर्फ एक डायमेंशन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। 2 डायमेंशन जो वेक्टर्स होते हैं जिसका आपने अभी बताया था, आई थिंक नकवी साहब ने, कि वेक्टर्स की एक डायरेक्शन होती है जो हम डायमेंशंस की बात करें, और साथ साथ उनका एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि वो कितना मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसकी लेंथ वेक्टर की कितनी है। तो अगर हर डायमेंशन में वो सिर्फ 1 यूनिट आगे गया है तो उसकी जो डायमेंशन है वो कम होगी, लेकिन अगर हर डायमेंशन में वो 9, 10 तक जाते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो बढ़ जाएगा। तो दूसरा चीज जो है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है हम अगर हमें याद हो, हमने स्कूल में जिससे कैलकुलेट करते थे, अगर वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है हमारा जिसके पास x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, तो हम उसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट से हमें उसकी वो मिल जाती थी, क्या कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता था। ठीक है, लेट मी ट्राई टू draw that on the whiteboard.
ठीक है, तो आपके पास अगर ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो है हम उसकी जो है इसका x कंपोनेंट और उसका जो y कंपोनेंट है उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं और x को स्क्वायर करते हैं और y को स्क्वायर करते हैं और इन सबको जो है फिर हम उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या है अंडर रूट लेने की? उसकी रीज़न ये है कि सॉरी इसकी रीज़न जो है वो है ये कि ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, if it is the magnitude, तो magnitude square is equal to x square plus y square। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम ने बताया। और अगर आपने सिर्फ m मालूम करना हो तो आप यहाँ से स्क्वायर हटा दें और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी सी ओवर हियर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट है कि उसकी जो डायमेंशंस होती हैं हम इनको स्क्वायर करके उन सबको ऐड कर देते हैं और फिर उनका हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये जो है 2 डायमेंशन में भी अप्लाई होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, 5 उससे भी हायर डायमेंशंस में भी होता है। तो अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक और वेक्टर आ जाएगा जिसकी यूनिट लेंथ होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड श्रिंक हो जाएगा क्योंकि हमने उसको मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें इरिस्पेक्टिव वो कितनी डायमेंशंस में है तो we'll get a unit vector। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें पता होगी कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है क्योंकि वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो रिलेटिव वो है वो हमें ऑर्डर वो प्रिजर्व करेंगे हम। तो यहाँ पे एक चीज है जिसको मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजर का हेड है वो। तो नॉर्मलाइजर के नीचे देखें यूजर 1 का नॉर्मलाइजर है 12.44। 12.44 का अगर आप फॉर्मूला देखें इस स्क्रीन पे तो इट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और सारी की सारी चीज का स्क्वायर रूट सबका चीज। तो इट इज द सेम पाइथागोरस फॉर्मूला बट अप्लाइड इन 4 डायमेंशंस। ठीक है, पाइथागोरस सिर्फ x और y तक जाता है लेकिन आप इसको 4 डायमेंशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपने डायमेंशंस जो हैं वो ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पे c डायमेंशन है हमारे पास, d डायमेंशन है, e डायमेंशन है और f डायमेंशन है, 4 डायमेंशंस है। इन चारों का हम स्क्वायर कर रहे हैं फिर उनको ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजर आ जाता है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ये हमें वेक्टर का u1 जो वेक्टर अगर है तो जो नॉर्मलाइजर जिसे मैं कह रहा हूँ वो उसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आई शुड प्रॉब्ली insert a row over here। और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये 12 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है। आप वो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखें इसने हाई रेटिंग्स दी हुई हैं सबको। यूजर 2 का भी 12 है मैग्नीट्यूड, यूजर 3 का भी 12 है, यूजर 4 का कम है मैग्नीट्यूड क्योंकि उसकी जो रेटिंग्स हैं वो देखें आप 7 तक गई हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा पे नहीं गई है। तो इसका मतलब है कि ये जरा थोड़ा सा टफ रेटिंग करता है। तो इस मैग्नीट्यूड का फायदा क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो है वो जाहिर है लेंथ ऑफ द वेक्टर है। अब जब आप किसी भी कंपोनेंट को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल b1 जो था वो 9 था, 9 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी फॉर बुक b1। ठीक है, और इसी तरह से जब आप बुक 2 की वैल्यू जो है विच इज d3 ओवर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे d3 है, d3 को मैं g3 से डिवाइड कर रहा हूँ। g3 is this ये बुक 2 है d3 ब्लू कलर में और रेड जो है वो उसका नॉर्मलाइजर है g3 में। तो बुक को जब उसके नॉर्मलाइजर से मैं डिवाइड करता हूँ तो आई गेट द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू फॉर बुक 2। इसी तरह से मुझे ये सारा जो है 4x4 मैट्रिक्स मुझे नॉर्मलाइज्ड मिल जाता है। और नॉर्मलाइज्ड इस तरह से मिलता है कि मैं हर
हर रेटिंग को, मिसाल के तौर पे ये रेटिंग है 2, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 12 से, या ये रेटिंग है 2, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, और ये मेरे पास ये रेटिंग आ रही है नॉर्मलाइज्ड 0.19। तो मुझे जो है ये करने से मुझे क्या मिला कि मुझे एक नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स मिल गया। अब नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स का मुझे जरूरत थी, व्हाई आई डिड दैट। उसकी रीजन दोबारा से मैं रिमाइंड कराऊंगा कि रीजन थी हमें क्योंकि हम यूजर्स की सिमिलैरिटी मालूम करना चाह रहे हैं। तो यूजर्स की सिमिलैरिटी मालूम करने के लिए हमें उनकी रेटिंग्स देखने पड़ेंगी कि उनकी रेटिंग्स कितनी सिमिलर हैं एक दूसरे से, और रेटिंग्स की सिमिलैरिटी मालूम करने के लिए वी नीड नॉर्मलाइज्ड रेटिंग्स, वी डोंट नीड एब्सोल्यूट रेटिंग्स, क्योंकि हो सकता है ये किसी ने 9 के बजाय 90 लिख दिया हो तो उसकी बिल्कुल ही सिमिलैरिटी जो है ऑफ हो जाएगी, वो किसी और रेटिंग से नहीं मिले मैच करेगा। लेकिन जब हम नॉर्मलाइज कर देते हैं तो सारी रेटिंग्स जो हैं वो एक ही फ्रेम के अंदर आ जाती हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखें कि कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं आपको मिलेगा नॉर्मलाइज मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। दे ऑल रेंज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि ये एक नॉर्मलाइज रेंज है, हमने हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज द रीजन वी नीड दिस नॉर्मलाइज मैट्रिक्स। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो यूजर्स की सिमिलैरिटीज मालूम करनी है कि यूजर 1 और यूजर 2 की क्या सिमिलैरिटी है। उसके लिए ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है मैट्रिक्स जो मैंने हाईलाइट किया इस वक्त, ये यूजर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूजर 1 और यूजर 2 काइट सिमिलर है क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी जो है वो 0.98 है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यूजर 1 और 3 भी सिमिलर हैं, यूजर 4 भी सिमिलर हैं, लेकिन उनकी सबकी सिमिलैरिटीज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। फिर जो ये सेंटर डायगोनल है ये ब्लैंक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम यूजर 1 और यूजर 1 की सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, वो जो कि 1 आएगी, इसलिए इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। ये यूजर 2 और यूजर 2 की सिमिलैरिटी है, यूजर 3 और यूजर 3 की सिमिलैरिटी है, और ये यूजर 4 और यूजर 4 की सिमिलैरिटी है। तो इसलिए जो है आप ये देखें कि ये यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं। और उस दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में वो है कि ये सिमेट्रिक है अराउंड द डायगोनल। मिसाल के तौर पर यूजर 1 और यूजर 2 की जो सिमिलैरिटी है वही यूजर 2 और यूजर 1 की भी है, ठीक है, 0.984 यूजर 4 और 1 जो है इस सेम एज यूजर 1 एंड यूजर 4, यानी कि आप उसकी रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनकी सिमिलैरिटी है। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये 0.98 आया कैसे, ठीक है, ये इसकी सिमिलैरिटी हमने कैलकुलेट की कैसे। तो उसका जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स या कोसाइन सिमिलैरिटी। इसके लिए भी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होगी। वो ये है कि आप दो वेक्टर्स के जो है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप दो वेक्टर्स को, ठीक है। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ योर वेक्टर्स दैट यू हैव डन बिफोर कमिंग टू IBA। तो वहाँ पे जो अपने वेक्टर्स किए थे उसमें आपको याद होगा कि उन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि दो तरह की मल्टीप्लिकेशंस होती थी वेक्टर्स में, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती थी और एक जो है डॉट मल्टीप्लिकेशन थी। डॉट प्रोडक्ट एक को हम कहते थे और या इनर प्रोडक्ट कहते थे, और दूसरी प्रोडक्ट को हम कहते थे क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता था वो ये होता था कि जो डॉट प्रोडक्ट्स होती थी they resulted in a scalar, ठीक है। और वो स्केलर क्या होता है, वो स्केलर रेंज करता था बिटवीन 0 and 1। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वो उसको हम उसकी कोसाइन वैल्यू भी कहते थे, क्योंकि कोसाइन वैल्यू जो होती है साइन और कोसाइन आपको भी मालूम है, वो भी जो है उनका मिनिमम 0 और 1 मैक्सिमम 1 होता है अगर हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहें, ठीक है। तो द वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to +1, ठीक है, अगर हम एक क्वाड्रेंट में रहें, बट दे डोंट गो बियॉन्ड 1। तो जो ये वाला जो होता है बेसिकली वैल्यू जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोसाइन थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान में एक एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल
2 डायमेंशन में तो हमें बहुत क्लियरली नजर आ जाता है, लेकिन 3 डायमेंशन में भी नजर आ सकता है। हमें 3 डायमेंशन में अगर 2 वेक्टर्स हों तो उनके दरमियान का हम एंगल देख सकते हैं कि उनका एंगल क्या है। लेट्स स्टिक टू 2 डायमेंशंस, ठीक है, फॉर डिस्कशन पर्पसेस। अभी अगर 2 डायमेंशन में एक पेपर यानी कि ले लें, एक पेपर पे आप 2 वेक्टर्स ड्रॉ करें, ठीक है। लेट मी डू इट ऑन व्हाइट बोर्ड अगेन, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनका दरमियान एक एंगल होता है, ठीक है। और मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जिनका एंगल जो है वो नैरो है। तो जब एंगल जब कम होता है या एंगल जब ज्यादा होता है, तो जिन जिन वेक्टर्स का एंगल कम है उनको ये मैं कह सकता हूँ कि ये सिमिलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और जिन वेक्टर्स का ये एंगल ज्यादा है उनको मैं कहूँगा कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी पॉइंट कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स। तो उस वक्त जो है उनका एंगल जो है आपस का वो 0 होगा। 0 का मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और अगर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट जो है उनका 180 का एंगल है, तो इसका मतलब वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन सेम है बट इट्स ऑपोजिट। अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें, ठीक है, फॉर दिस डिस्कशन लेट्स फॉरगेट अबाउट द डायरेक्शन। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी आएगी वो आती है 90 एंगल पे, ठीक है। 90 एंगल में का मतलब ये होता है कि ये 2 वेक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं इन देयर डायरेक्शंस। परपेंडिकुलर है जी नहीं सर सही कह रहे हैं सर, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड से बिल्कुल वो हैं 0 हो जाएंगे। हालांकि सर अगर बिल्कुल अपोजिट होता है तो जो कि 180 का होता है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं आएगा, तो फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा। जी तो हम सर दोनों को इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे, 2 कंडीशंस को, इसको थोड़ा सा हाँ बता दें। जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और इट शोज यू आर टेकिंग इंटरेस्ट आल्सो, सो दैट्स ग्रेट। देखिए मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई दीज 2 डायरेक्शंस हैव नथिंग इन कॉमन। वो इसलिए क्योंकि अगर if there is a person, let's say it's a computer game और हमारे पास एक कैरेक्टर है, यहाँ पे एक डॉट है, this dot can travel up and down this direction, और वो जितना भी ऊपर चला जाए इस डायरेक्शन में या जितना भी नीचे आ जाए, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, लेकिन यानी कि x डायरेक्शन में उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, जरा सी भी मूवमेंट नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास एक इस तरह का वेक्टर है, तो जब ये डॉट जो है ये ट्रेवल करते हुए ऊपर जाएगा, तो ये दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करोगा, थोड़ा सा x डायरेक्शन में भी जाएगा, थोड़ा सा y डायरेक्शन में भी जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा ये राइट की तरफ भी मूव करेगा और थोड़ा सा ये अपवर्ड भी मूव करेगा अलोंग दिस वेक्टर। लेकिन जो वर्टिकल वेक्टर होगा उसके अलोंग जब हम मूव करेंगे तो हमारी बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं होगी इन दी एक्स डायरेक्शन, यानी कि हम सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे होंगे और जरा सा भी लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर रहे होंगे। और इसी तरह से अगर कोई डॉट जो है वो लेफ्ट और राइट जा रहा है, इस वेक्टर के अलोंग जा रहा है, तो उसकी कोई भी मूवमेंट अप एंड डाउन नहीं हो रही, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट हो रही है। सो देयर इज 0 अप एंड डाउन मूवमेंट फॉर ऑल द डॉट्स दैट ट्रेवल अलोंग दिस। तो इसलिए ये जो 90 एंगल पे जो वेक्टर्स होते हैं उनमें दूसरे वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट 0 होता है, यानी कि दूसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट 0 होता है, यानी कि वो सिर्फ उनकी अपनी डायरेक्शन होती है। जो 180 का होता है, इन दोनों की एक्चुअली डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों लेफ्ट राइट पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसकी डायरेक्शन की इस वक्त में जो साइन है उसमें कंसर्न नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कंसर्न हूँ कि व्हेन अ पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो किन किन डायरेक्शंस में जो उसकी कंपोनेंट डायरेक्शंस हैं उनमें किन किन कंपोनेंट डायरेक्शंस में वो ट्रैवल करता है। तो जो 45 एंगल होता है फॉर एग्जांपल, उसमें जब जो वेक्टर होता है उसमें जब आप मूव करते हैं तो यू मूव इक्वली इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन व्हेन यू गो इन 45 डायरेक्शन। लेकिन जो
जो ज़्यादा वर्टिकल, ज़्यादा स्टीप एंगल्स होते हैं, जो ज़्यादा 90 के करीब होते हैं, लाइक 60, तो उसमें जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप अप एंड डाउन ज़्यादा ट्रेवल कर रहे होते हैं और लेफ्ट और राइट कम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्स एक्सिस के ज़्यादा करीब होते हैं, लाइक 30 डिग्री एंगल, तो उस वेक्टर पे जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेवल कर रहे होते हैं, वाई डायरेक्शन में कम ट्रेवल कर रहे होते हैं उसमें, लेकिन आप कर रहे होते हैं। देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ वाई डायरेक्शन आल्सो। फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट क्लियर इट अगेन। आपके पास ये दो एक्सिस हैं और इसमें लेट्स सपोज एक इस तरह का है, ठीक है। तो जब आप ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे आगे ट्रैवल करते हुए, तो आपने एक्स तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर लिया, लेकिन वाई सिर्फ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, तो आपका जो वाई कंपोनेंट है वो कम है, एक्स कंपोनेंट ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका इस तरह का कोई वेक्टर होता और आप उस यहाँ पे पहुंच जाते, तो उस वक्त आप देखते कि आपका जो एक्स मूवमेंट है वो कम है, लेकिन वाई मूवमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है। और जब आप बिल्कुल ही इसमें आ जाते हैं, जीरो एंगल पे आ जाते हैं जब, ठीक है, तो आप देखते हैं कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, देयर इज नो वाई डायरेक्शन। और जब आप प्योरली वर्टिकल चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ उसमें वर्टिकल डायरेक्शन रह गई है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गई है। तो दैट्स व्हाई जो 90 एंगल होते हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर मोस्ट डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम ईच अदर। So that's how we use this concept of similarity. So let me go back to my spreadsheet. और यहाँ पे आप देखें कि जो 0.98 आ रहा है इस वक्त, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन सिमिलर डायरेक्शन में ये जो है वो कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो जो कोसाइन है, आपको पता है कि जीरो एंगल का कोसाइन क्या होता है और 90 का कोसाइन क्या होता है। जीरो का क्या होता है कोसाइन? सर cos 0 आई थिंक 1 होता है और cos 90 0। cos 90 is 0, ठीक है। उसका ये और इसका ये मैंने रिवर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी यानी कि इसका मतलब ये ऑपोजिट है, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट सेम होंगे वो उनका कोसाइन 0 होगा, और इसका तो यहाँ पे इसको जो है एक तरह से 1 माइनस कोसाइन आप समझ सकते हैं इस चीज को। और कोसाइन सिमिलैरिटी मालूम कैसे करते हैं? अगेन इट कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला इन वेक्टर्स, जिसमें आपने याद होगा कि कोसाइन मालूम करने के लिए दो वेक्टर्स का आप उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं। और इनर प्रोडक्ट क्या होती है कि यू सिंपली मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। मिसाल के तौर पर अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं जिसमें एक वेक्टर है उसके x1 y1 उसके कंपोनेंट्स हैं और दूसरा है उसके x2 y2 कंपोनेंट्स हैं, तो आप इनर प्रोडक्ट मालूम करने के लिए x1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं और y1 को y2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनका दोनों का सम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फॉर्मूले में, तो हम j को j से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, l को l से कर रहे हैं और m को m से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है ले रहे हैं दो वेक्टर्स की, सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स की। और ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमें उनकी सिमिलैरिटी डायरेक्टली हमें सिमिलैरिटी दे रही है। इसमें मिसाल के तौर पे मैं दो को सेम कर देता हूँ, U1 और U2 को मैं सेम कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको 9 कर देता हूँ, इसकी रेटिंग 1 कर देता हूँ, और अब ये U1 और U2 जो है सेम हो गए हैं। तो आपने देखा ये फॉर्मूला में भी ये चेंज होके 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने उनकी रेटिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल कर दी थी, तो इसलिए उनका जो वेक्टर्स की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सेम हो गई है और इसलिए उनकी जो सिमिलैरिटी है वो 1 आ गई है। तो दैट्स व्हाई हाउ आई कैलकुलेट द सिमिलैरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। और अगर मैं इनको बिल्कुल इसके 90 के एंगल पे लेके आना चाहूँ तो मुझे जो है ये थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि किन वैल्यूज पे जो है ये 0 के करीब इनकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब है ये कि वो उनको हम 90 एंगल नहीं कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, क्योंकि ऑर्थोगोनल जो है वो 90 एंगल तो सिर्फ 2 डायमेंशंस में इट मेक्स सेंस, लेकिन जब हम
हायर डायमेंशंस की बात करते हैं, लाइक 4 डायमेंशंस, 5, 10 डायमेंशंस या मिलियन डायमेंशंस की, तो उस वक्त हम 90 एंगल नहीं कहते, उस वक्त कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, ठीक है, या परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो जब मैंने इनकी सेम वैल्यू की तो आपने देखा कि इनकी सिमिलरिटी 1 होगी। तो लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस वैल्यू, लेकिन गोइंग बैक टू प्रीवियस वैल्यू से पहले देखें कि इनकी प्रिडिक्शंस पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। 8, 8, 9, 8, 3, 3, 3, 2, तो ये अभी तक प्रिडिक्शंस जो हैं काफी हद तक सही काम कर रहा है ये फार्मूला। लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल वैल्यूज। ओके, तो ये हम उस पे आ गए यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज पे। तो ये मैट्रिक्स जो है ये, इससे अब हमें यूजर की सिमिलरिटी मालूम होगी। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं यूजर्स की सिमिलरिटी तक हम पहुंच गए हैं। अब हमने फाइनल स्टेप लेना है, अब वो ये है कि इसकी मदद से हमने जो है प्रिडिक्ट करना है, ये वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है कि यूजर 1 जो है वो बुक 1 को क्या वैल्यू प्रोड्यूस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला, नाउ आई विल एक्सप्लेन द फार्मूला, लेकिन इस फार्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे एक और स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। वो ये स्टेटमेंट है कि हम सिमिलरिटी मालूम क्यों कर रहे हैं यूजर्स की। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर यूजर 1 जो है, मिसाल के तौर पे मैं इनको सिमिलर कर देता हूँ दोबारा से, इसको 9 कर दिया मैंने और इसको लेट्स से मैंने ब्लैंक कर दिया, मुझे मालूम नहीं है क्या, ठीक है। अब यूजर 1 और 2 जो है उसकी बुक 1 में मैच कर रही है, बुक 2 में भी मैच कर रही है, बुक 4 में भी मैच कर रही है, और बुक 3 में यूजर 2 ने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। और इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए मैं देखूंगा कि यूजर 1 जो है वो सबसे ज्यादा सिमिलर है टू यूजर 2। तो यूजर 1 ने क्या वैल्यू रखी थी, क्या रेटिंग दी थी बुक 3 की? तो यूजर 1 ने तो 1 दी थी, तो मैं डायरेक्टली ये भी यूज कर सकता हूँ, मैं 1 प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये भी यूजर 2 जो है ना ये भी 1 वैल्यू देगा, ठीक है। दैट वुड बी जस्ट कंसिडरिंग 1 यूजर दैट इज द मोस्ट सिमिलर। लेकिन कोलैबोरेटिव फिल्टर में हम सिर्फ एक यूजर नहीं देखते, हम सारे यूजर्स देखते हैं, जितने भी यूजर्स हमारे पास, और सब की देखते हैं कि रेटिंग्स जो हैं वो कितनी सिमिलर हैं। लेकिन सिर्फ करते ये हैं कि जो ज्यादा सिमिलर यूजर्स होते हैं उनका हम वेट बढ़ा देते हैं उनका, ठीक है, और जो डिसिमिलर यूजर्स होते हैं उनका वेट कम कर देते हैं। तो असर सबका पड़ता है, क्योंकि सिमिलरिटी तो जाहिर है सब में होगी, किसी 0 से ज्यादा ही होती है सब में, लेकिन जिनकी सिमिलरिटी ज्यादा है उनको हम ज्यादा वेट असाइन कर देते हैं, और जिनकी सिमिलरिटी कम है उनको हम कम वेट असाइन करते हैं। तो ये चीज जहन में रखें कि ये हम सिमिलरिटी इसलिए हमने कैलकुलेट की थी ताकि हम उनकी वेट हमें असाइन कर सकें, क्योंकि हमने उनकी जो सिमिलर यूजर्स हैं उनकी रेटिंग्स जो हैं उनको यूज करना है अपने फॉर्मूले में, और रेटिंग्स जो हैं कौन सी रेटिंग को ज्यादा वेट देंगे, हम उस यूजर की रेटिंग को ज्यादा वेट देंगे जो ज्यादा सिमिलर है। तो इसलिए जो है ये जो है हमें जहन में रखना है कि हमें जो है वेट्स चाहिए होते हैं इनके लिए कि क्या वेट हमारे पास होना चाहिए। तो अब विद दिस बैकग्राउंड लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला अगेन प्रेडिक्शन का, और इसको अगर हम देखें कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो it is making use of these colored boxes over here, ठीक है। ये देखिए, ये एक एवरेजेस को सब यूज कर रहा है, यहाँ पे बुक 1 की सारी रेटिंग्स को यूज कर रहा है ये, और यूजर 1 की सिमिलैरिटीज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स ले रहा है। एक तो ले रहा है कि हर यूजर की अपनी एवरेज क्या है उसको देख रहा है, फिर ये देख रहे हैं कि बुक 1 की सारी रेटिंग्स दूसरी की क्या है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूजर 1 की प्रिडिक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ है वो यूजर 1 की बुक 1 की रेटिंग प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ मैं। तो यूजर 1 की बुक 1 की रेटिंग प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे बुक 1 की बाकी सारी रेटिंग्स चाहिए, ठीक है, यूजर 2, 3 और 4 की, कि उन्होंने क्या क्या रेट किया बुक 1 को। फिर मुझे हर यूजर की एवरेज चाहिए, और फिर मुझे हर यूजर की सिमिलरिटी चाहिए यूजर 1 के साथ, और फिर मुझे उसका वेट भी चाहिए, ठीक है। तो वो इस फॉर्मूले में देखें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो है
इस फार्मूले में देखें कि हमने H3 से शुरू किया है। H3 क्या है? वो ये वाला एवरेज है, यूजर 1 की एवरेज है, और उसमें फिर हम कुछ चीजें प्लस 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 कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम बाकी यूजर्स को बिल्कुल ही हटा दें, मिटा दें किसी तरह से कोई यूजर होता ही नहीं, कोई और भी, सिर्फ यूजर 1 होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर हमें उसकी बुक 1 की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी होती, तो हम क्या करते हैं, सिंपली कि उसकी जो एवरेज है यूजर 1 की, वही यूज कर लेते हैं एज प्रिडिक्टेड वैल्यू, कि भाई हमें नहीं पता इसकी जो एवरेज इसने दी है दूसरी किताबों को, वो इसको दे देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यूजर 2, 3 और 4 अगर नहीं होते इस मैट्रिक्स में, और B1 का भी सेल खाली होता, सिर्फ B2, B3 और B4 के सेल्स में हमें वैल्यू होती, और हमें B1 की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती, तो हम कहते हैं हमारे लिए बेस्ट केस जो है वो ये है कि बाकी 3 की एवरेज ले लो। ठीक है, वही बेस्ट केस है, इसके अलावा और बेस्ट केस नहीं हो सकता। तो वो बेस्ट केस हमारा यहाँ पे ये H3 में नजर आ रहा है इस फॉर्मूले में। दिस इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट यूजर, लेकिन हम इस एवरेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वी वांट टू इम्प्रूव दिस एवरेज, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग some components to H1। देखिए हम कितने components ऐड कर रहे हैं, एक ये component ऐड कर रहे हैं, दूसरा component ये ऐड कर रहे हैं, तीसरा component, तो 3 component उसमें हम ऐड कर रहे हैं, और वो 3 components 3 यूजर जो अलग अलग यूजर्स हैं वो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, उनके components हैं। तो हम अगर एक कंपोनेंट को देख लें, एक यूजर को, तो फिर हम बाकी 3 भी उसी तरह से होंगे, तो वो हमें समझ आ देंगे बाकी क्या हो रहा है। तो हमें सिर्फ एक यूजर के कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो इसमें देखें कि L9 को हमने सबसे पहले O9 से डिवाइड किया है। सो व्हाट इज L9 ओवर हियर? L9 जो है वो हमारे पास ये वैल्यू है, यूजर 1 और यूजर 2 की जो सिमिलैरिटी है वो L9 में है हमारे पास, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है O9 से, जो कि उनका वेट था। ठीक है, इसकी सॉरी जो इसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू थी, यानी कि इन तीनों के सम से हमने उसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, इसलिए हमने सिर्फ उसको सम से डिवाइड किया। सो इफ यू गो बैक टू दिस फॉर्मूला, तो हमने सिमिलैरिटी को उसके सम से डिवाइड किया है, और फिर उस चीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, वो मल्टीप्लाई किया है C4 माइनस H4। C4 माइनस H4 जो है वो जो है इसकी यूजर 2 की बुक 1 की रेटिंग माइनस फ्रॉम यूजर 2 की एवरेज। ठीक है, तो उसने उस जो अपनी एवरेज से जितना वो डिवेट किया है, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द वेट। द वेट इज नॉर्मलाइज्ड similarity matrix, which is C4 minus H4 is the rating, book rating minus the average rating। ठीक है, उस यूजर की जो एवरेज रेटिंग है बुक्स की, यानी कि वो अपनी एवरेज से कितना दूर आया है इस बुक के लिए। ठीक है, वो जिसको बहुत ज्यादा पसंद आई है या बहुत कम पसंद आई है, वो बता रहा है कि ये उसकी एवरेज से कितना ऊपर या कितना नीचे है। लेकिन अगर इस एवरेज को हमने कोई अहमियत देनी है, तो वो हम उसकी सिमिलैरिटी देख के देंगे कि उसकी कितनी सिमिलैरिटी कितनी है, तो वो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर सिमिलैरिटी 1 हुई तो ये वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी, और अगर सिमिलैरिटी जो है वो 0 हुई तो फिर इस डिफरेंस को फिर हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितना उसने पसंद किया या ना पसंद किया, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट यूजर है। तो सिमिलैरिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है हम वेट के साथ जो है उसका जो सम है उससे डिवाइड भी कर रहे हैं, ताकि हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यू सारी रहे। और यही काम फिर हम यूजर 2 और यूजर 3 के साथ कर रहे हैं। उनकी देख रहे हैं कि उन्होंने इस बुक की जो उनकी रेटिंग है वो एवरेज से कितना डिफरेंट है, और ये यूजर कितना सिमिलर है इस यूजर से, और फिर वो जो है उसकी सिमिलरिटी को हमने नॉर्मलाइज किया और उसको वेट के तौर पे यूज किया उसके डिफरेंस से, और इन सबको जब हम ऐड करते हैं टू दी बेस एवरेज, तो हमारे पास प्रिडिक्शन आ जाती है। ठीक है, अब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये लॉजिक जो है ये कितनी जो है अच्छी जा रही है। तो ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम में बुक 1 और बुक 2 की रियल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, जो ये ब्लू डायमंड्स हैं ये बुक 1 की
एक्चुअल वैल्यू है और जो रेड स्क्वायर्स हैं ये बुक 1 की प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्लोजली मैच कर रहा है ये, ठीक है। और इसी तरह से बुक 2 जो है विच इज अ ग्रीन ट्राइंगल, उसको और जो x है ग्रे x वो उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, वो भी आप देखें कि वो भी मैच कर रही है, सिर्फ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन देयर इज अ वेरी क्लोज prediction. So this spreadsheet is demonstrating to you कि किस तरह से हम बहुत ही कम डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम सिमिलैरिटी को मैथमेटिकली यूज करके प्रिडिक्शन इस्तेमाल करते हैं। एंड एज यू हैव सीन फ्रॉम दिस स्प्रेडशीट कि it's not very complex mathematics, it's simple mathematics जिसमें सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम, but there is logic. So I hope I was able to explain the logic of this algorithm, which is called as collaborative algorithm. What I'll do is I'll post this spreadsheet on your LMS as well, so that you can do your own experiment and figure out what's happening. But let me conclude by saying that this is just proof of a concept. We can make it more sophisticated, or जो actual real life में जो algorithms use होते हैं, they are definitely more sophisticated. Some of them are kind of trade secret. वे बहुत research करके वो formula बनाए जाते हैं, and they don't want to share those formulas with the rest of the world, so that they retain this competitive edge with other competitors. लेकिन this field is open. It's called social computing. इसमें अगर आप research में वो चाह रहे हैं, I'll also upload the class recording as well. तो इसमें जो है आपके पास ये देखिए potential है, ठीक है। You have to make sure that you understand these basics and then you take them forward. और आप contemplate कर सकते हैं, forum पे जाके discuss कर सकते हैं कि किस तरह से इस algorithm को जो है मज़ीद accurate बना सकते हैं, ताकि जो predicted values हैं वो और नज़दीक आ जाए। जो अभी तक जो इस simple से spreadsheet में नज़र आ रही है, उसकी भी काफ़ी impressive performance है, लेकिन how can we make it even better, ठीक है। अगर ये 4x4 के बजाय हमारे पास 100 by 100 का matrix आ जाता, which is again not very big as compared to what can happen in a real online commerce store. उनके कितने customers होंगे, ठीक है, और कितनी books वो sell कर रहे होंगे, there must be more than 100. तो उनका matrix जब होगा आपके पास, तो उसको किस तरह से उस डेटा को आपने करना है। और फिर एक तीसरी चीज जो होती है इसके अंदर, जब आप ये कर रहे होते हैं ये रिसर्च इस तरह की सोशल कंप्यूटिंग के अंदर, तो आपने ऐसे एल्गोरिदम्स बनाने होते हैं जो कि कंप्यूटेशनली भी इफेक्टिव हों। ऐसा ना हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो उसमें रन करने में, ठीक है। तो ये तो स्प्रेडशीट में बिल्कुल बहुत छोटा सा मैट्रिक्स है 4x4 का, इसलिए इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन इफ़ यू गो रियली बिग, ठीक है, तो जो आपकी जो एल्गोरिदम है उसकी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी जो है वो भी काफ़ी जो है रोल प्ले करेगी, बिकॉज यू हैव टू जनरेट रिकमेंडेशंस या adjust your program in real time. So you don't have a lot of hours to make the computations. So your computational algorithm has to be. So maybe you can discuss it, discuss your ideas on the forum कि हम किस तरह से ज़्यादा effective recommenders, collaborative filtering algorithm जो है वो बना सकते हैं, उनमें क्या क्या फैक्टर्स और सिमिलैरिटी के अलावा और क्या फैक्टर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं, यूजर सिमिलैरिटी के अलावा और क्या हम यूज कर सकते हैं इसी डेटा के अंदर से, और किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालें ताकि हम हमारे पास जो प्रिडिक्शन आए वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। So with this I stop my session today. If you have any questions, I'll be very happy to answer them. No sir, clear है सब कुछ सर, thank you so much for that. अच्छा All सर, right, यहाँ पर अगर जी मजीद अगर हम पोस्ट करते हैं इस टाइप के एक्सेल शीट वगैरह, मैंने एक और कोर्स किया है, क्या बोलते हैं वो, एनालिटिकल अप्रोच टू मार्केटिंग डिसीजंस, उसके अंदर भी हम यही चीज़ करते हैं। तो मैं
उसका कोर्स मटेरियल भी LMS वगैरह पे शेयर कर सकता हूँ? अगर मतलब बिल्कुल आप करें, that is what the all collaborative learning is all about. If you know something that you think is valuable for other students, so please put them up on your forum, on your commons, LMS, wiki, कहीं पे भी आप share कर सकते हैं. Please do that. Okay sir, do that. Thank you sir. And I'll be in touch with you via email and announcements also, LMS announcements. So Allah Hafiz till next week. Allah Hafiz sir. Allah Hafiz.